Hello and welcome, guys. Today we are going to discuss about the evolving scenarios in the Middle East. अब सबसे पहले we'll have to understand that ये Middle East में जो अभी का सिनेरियो है, जो सिचुएशन उभर के आई है, it has its genesis in the history as well, in the history over there. सबसे पहले जो बेसिक इशू है पूरे वेस्ट एशिया में, that lies in the heart of the Israel and Palestinian conflict. ठीक है, after this conflict, lot of things have emerged in the Middle East, right? So as of now, what we understand is that this whole region is taking a new shape. वो shape क्या है? Let's understand it. All right? This is the country. This place, यहाँ पे इजराइल एंड पैलेस्टीन है. फ़लस्तीन का जो रीजन है, इट्स डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स. वन इज वेस्ट बैंक and second is Gaza. Okay. Now the thing is, after this 2023 में, October 2023 में जो issue हो गया that the Hamas militants went into the Israeli territory and killed civilians over there. Almost 1,200 people were killed and many of them were taken as hostages. तो उस डे के उस सिचुएशन के बाद Israel has completely tried to change the situation in the Gaza. उन्होंने बॉम्बिंग्स की है, उन्होंने पूरे रीजन को फ्लैट किया, कारपेट बॉम्बिंग की है पूरे रीजन की. उसके नतीजे में लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड इन दिस होल रीजन एज वेल. हुआ क्या? यमन स्टार्टेड इट्स डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द इजराइल. उन्होंने मिसाइल्स मारना शुरू कर दिए इजराइल पे. ठीक है, साथ साथ में सीरिया विच वॉज रूल्ड बाय रशिया एंड ईरान बैक्ड गवर्नमेंट ऑफ असद, बशर अल असद. ठीक है, उसको जो रेजिस्टेंस हो रहा था, अल नुसरा फ्रंट या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द असद, उन्होंने इस पूरी कंट्री को टेक ओवर किया. असद हैड टू फ्लेड एंड दोस गाइज नाउ लेड बाय द अल शरा हैव टेकन ओवर द गवर्नमेंट इन सीरिया. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज द इरानियन आर्म ऑफ रेजिस्टेंस हैज बीन ब्रोकन. वो आर्म क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट, हमास एक जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गाजा के साइड में, गाजा रीजन में इजराइल के खिलाफ काम करती थी, एंड हु इज रूलिंग द गाजा रीजन. हमास हैज बीन वीकेंड. हिजबुल्लाह इन लेबनान हैज बीन decimated, right? Syria gone out of hands. So that arm which used to fight Israel directly, indirectly has now been broken. Now Iran is at the weakest of its strength as of now. क्यों? क्योंकि Israel has time and again went into the Iranian airspace and bombed its territories. कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए और भी बहुत सारे जगहों पे उन्होंने हमले किए. Then Iran resisted and then sent its missiles and all. वो सारी चीज़ें जो ईरान और इजराइल के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो गया. एंड वो एस्केलेशन उतना नहीं चला as the people around the world were expecting. If Israel directly, there has been reports that Israel is involved in killings of many other leaders of the Iran, right? Lekin the confrontation that we were expecting, it did not went into that escalation level. Rather, ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन में मिसाइल्स मार दिए और खत्म हो गया मामला सारा. Now, all the people around the world who are watching this conflict, what they understand is कि ये जो पूरा रीजन है, ईरान इज एट द वीकेस्ट ऑफ इट्स पॉइंट एज ऑफ नाउ मिलिटरीली. वो कैसे? क्योंकि एक जो इसका आर्म ऑफ रेजिस्टेंस था, हमास इज अंडरग्राउंड, मोस्ट ऑफ इट्स टॉप लीडरशिप इज किल्ड. जो हिजबुल्ला है, it's completely decimated. We understand that pager attack, right? At the same time, Syria is taken over. Syria is gone. Now, Israel has, over a period of time, taken over the Golan Heights and moved its forces deep inside the Syrian territory, close to the border of Iraq, right? So all these things have happened, which all the experts around the world have got that feeling that Iran is at its weakest as of now. Now,
what is the situation, what is going to happen. Now we'll understand here. Iran at its weakest, decimated proxies, Hezbollah and Hamas, Syria gone to the Al-Shara, right? Pager attack, Assad regime left. Now Israel has pushed off its forces deep inside the Syrian territory here. Israel ने क्या बोला कि we are trying to do a preventive action against the alleged terrorist groups who are operating in that region. Okay. Now, at the same time, what we have to understand is there is a negotiation, nuclear negotiation going on between United States and Iran. It is said that United States has put long list of demands in front of Iran, and Iran has not been able to accept it because it is quite recently the supreme leader of Iran has said the demands are quite outrageous. ये हम accept कर ही नहीं सकते. That means the negotiations that are going on between Iran and United States are like the commentators around the world feel that this is not going to get culminated into any sort of agreement. And the reasons are quite obvious. ठीक है. और साथ साथ में with Israel at its peak of its strength, because of the backing it has got in the Europe and by United States, it has annihilated Gaza. It has decimated the groups Hamas and the Hezbollah that were around its periphery in the border region who were fighting against it. Now its focus has been completely shifted towards Iran. Now इसका मतलब क्या है? There are some credible reports. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने ये हेडलाइन कल 2 दिन पहले छापी कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज गॉट क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट इजराइल इज गोइंग टू अटैक द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इन ईरान. इसका मतलब क्या हो गया? देयर विल बी अ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन ईरान एंड इजराइल. व्हाट इफ दैट एस्केलेशन वेंट आउट ऑफ हैंड? तो क्या होगा? लेट्स अंडरस्टैंड हियर. ये पूरा रीजन will take a new shape. क्या होगा? जो बाकी सारी countries हैं which are quite जो बड़े silent है as of now, जो अपने latently they are doing some sort of negotiations, ठीक है, but as of now वो sideline पे हैं. They are watching the things how they are going to unfold before all those things would happen. तो वो लोग क्या, जैसे सऊदी अरेबिया, recently President Trump went to Saudi Arabia, उन्होंने कुछ deals की. At the same time we all have seen that photo जहाँ पे President Trump, Mohammed bin Salman and the Syrian leader was there. These three had taken the photo. This means that they are trying to gain the legitimacy of the people who are ruling in Syria as of now. तो होगा क्या? ये अपने लिए ये कुछ काम कर रहे हैं. Similarly, the कतर के लीडर्स ने, अरब अमीरात के लीडर्स ने, they were trying to negotiate things for the people living in Gaza as well. Now, with Israel being quite reluctant to any of the demands, वो ना negotiation की बात कर रहे हैं. Now they are saying कि हम तो completely उसको militarily occupy करेंगे. We will dehamasization करेंगे, जिसमें हुई हमास को हम भगा देंगे. तो हम वहाँ पे permanently अपने forces रखेंगे. तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन साथ साथ में एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात भी हो रही है, जिसमें ईरान एंड इजराइल की एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बात हो रही है. अब अगर ऐसा हुआ, ये पूरा रीजन जो है ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जब ईरान और इजराइल विल बी इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, तो इराक विल आल्सो हैज टू टेक अ साइड. यमन हैज ऑलरेडी टेकन द साइड. यमन इज देयर फाइटिंग अगेंस्ट द इजराइल. मिसाइल छोड़ रहा है और इनके पोर्ट्स पे भी हमला हो गया. तो ये पूरा रीजन जो है, ये रेड सी, ये पूरा रीजन, यहाँ से जो भी ट्रेड हो रहा है, all this region will stay unstabilized like over a period of time. इसकी instability बढ़ जाएगी rather than going stable, क्योंकि पूरा रीजन ये जंग के लपेटे में आ जाएगा. ऑलरेडी 3-4 कंट्रीज तो लड़ ही रही हैं. देन सऊदी अरेबिया के पास भी कोई ऑप्शन बचेगा नहीं. अब इसके सर के ऊपर से मिसाइल जाएंगे तो क्या करेगा? ठीक है. सिमिलरली ये इराक के पास भी कोई ऑप्शन तो बचेगा नहीं. एंड इजराइल विल डेफिनेटली पुश द टेरिटरी अहेड. तो ये पूरा खित्ता जो है, ये पूरा रीजन जो है, जंग के लपेटे में आने के खदशात है. नाउ इफ दैट हैपन्स, गॉड फॉरबिड, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया? वो कैसे पॉसिबल? लेट मी मेक यू गाइस अंडरस्टैंड.
here. Repercussions for India and the other countries living in Asia and in Asia particularly. ठीक है, सबसे पहला इंडिया का जो ऑयल सप्लाईज हैं, जो एनर्जी के सप्लाईज हैं, क्रूड ऑयल जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 60% ऑफ आवर क्रूड ऑयल इज इंपोर्टेड फ्रॉम वेस्ट एशिया ओनली. यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, इन सारे कंट्री से, इराक, इन सारे कंट्री से हम 60% ऑफ आवर इंपोर्ट्स यहां से कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर जंग हो गई, अगर ये पूरा रीजन इनस्टेबल और ज़्यादा हो गया, उससे क्या होगा, हमारे जो सप्लाईज है वो इनस्टेबल हो जाएंगे और हमारे इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आवर इकोनॉमी. यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो महंगी हो जाएंगी, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो ओबियसली हमारे इन्फ्लेशन पे जो खतरे आएंगे ओबियसली बढ़ जाएंगे, हमारी इन्फ्लेशन बढ़ सकती है. ठीक है. सेकेंड, डिक्रीज्ड एक्सपोर्ट्स. नॉर्मली क्या है, इंडिया और वेस्ट एशिया एक बहुत गहरा ट्रेड है आपस में. हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन हमारा एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है सबसे ज़्यादा. वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस ऑफ इंडिया इज़ वेस्ट एशिया एज वेल. ठीक है. हम इंजीनियरिंग गुड्स, ज्वेलरीज, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं. तो जब रीजन इनस्टेबल हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट्स में भी दिक्कत आ जाएगी, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारे यहाँ इम्पैक्ट पड़ सकता है. तीसरी बात जो रेमिटेंसेज आती है, देयर आर मिलियंस ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन द वेस्ट एशिया. सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, ऑल दोज कंट्रीज जहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा तादाद में लोग काम करते हैं, वहाँ से रेमिटेंसेज आती हैं और हमारे ग्रोथ में उनका एक बहुत बड़ा रोल है. ठीक है. वो रेमिटेंसेज आने में, लाइक ऑल द रीजन गेटिंग इन अनस्टेबल, तो रेमिटेंसेज आना बंद हो जाएंगी. साथ साथ में उन लोगों को मैनेज, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, तो उन लोगों को लाना, उनकी लाइफ भी खतरे में पड़ेगी. तो उनको इंडिया वापस ले आना या किस तरीके से सरकार को बहुत दिक्कत का सामना हो सकता है. ठीक है. ये दीज आर द थिंग्स विच आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग इंडिया. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की जरूरत है, India has always tried to maneuver the relations between Israel and the Palestine. We have always stood for a two-state solution, जहाँ पे हम बात करते हैं कि नहीं, we want coexistence of Israel as well as Palestine, जहाँ पे दोनों कंट्रीज आपस में पीसफुली कोएग्जिस्ट करें. ऐसा नहीं है कि we want annihilation of Palestine by Israel और completely decimation of Israel by the Palestinians. No, we always stood for two-state solution. एंड विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल. ऑल द वर्ल्ड, जितने भी बड़ी बड़ी सारी दुनिया ये कहती है कि नहीं, दोनों कंट्रीज को रहने का हक है, ज्यूज को भी रहने का हक है, पैलेस्टीनियंस को भी रहने का हक है, लेकिन पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं. बट हो कुछ और रहा है, प्रैक्टिकली वहां पे कुछ और हो रहा है. बट वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर दिस. और हमने अपनी जो फॉरेन रिलेशंस हैं विज़ाविज़ द वेस्ट एशिया ऐसे ही नेविगेट की हुई है. अब अगर यहाँ पे मामला खराब हो गया और अनस्टेबिलिटी हो गई, उसके चक्कर में हमको ये रिलेशनशिप मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. तो डिप्लोमेटिकली इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस. एंड नाउ वन ऑफ द लार्जेस्ट थिंग्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर इज, यहाँ पे ये जो ट्रेड रूट है, ये वाला रेड सी वाला, ये पूरा रीजन यहाँ पे अरेबियन सी की तरफ जो आता है. ठीक है. ये रेड सी और इस पूरे एरिया में जो ट्रेड होता है, इट कंटेन्स 15% ऑफ टोटल ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड. 15%, 15% है दुनिया के टोटल ट्रेड का, इस पूरे रीजन से हो रहा है. ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी अराउंड द रीजन इन यमन, ट्रेड यहाँ से बहुत कम जा रहा है. लेकिन अगर ये भी रुक गया, अगर और इंस्टेबिलिटी हो गई, तो पूरा कंप्लीटली ये रूट ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, चाइना, जो इंडोनेशिया है, बाकी सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो सकता है. ठीक है. तो दैट इज वाई वी ऑलवेज प्रे फॉर द पीस इन द रीजन. एट द सेम टाइम वी एज अ कंट्री हैव टू बी प्रिपेयर्ड for any exigency that arises in this particular region.
This is for today, guys. Thank you very much. We'll meet again.